So I welcome Vinay. Vinay is from IIM Udaipur. Vinay, I am so happy to see you here. And I was sharing about you with these people, young lads, and I was telling them Vinay how Vinay has really improved and continuously has worked on his personality. So बहुत मेहनत किया है Vinay ने. He's really worked hard. And I was telling him that next year you will be here as a faculty member. You will be training all of us. You will be helping all of us with our interviews. So Vinay is here. Welcome kariye Vinay ka. Vinay, the platform is completely over to you now. Ball is in your court. Sakshi is there with you. Pankaj is there with you. Rohit is there with you. We will start with the interviews first. Interact with them. Have a mini interview. Just hear about the introduction. What you have to assess that. And once you are over, talk about why MBA and keep it light today. Right? Don't grill them too much so they become like roasted chicken. All right. Sakshi is not feeling well, so isko thoda kam karna grill. But make sure they understand the flavor of what is MBA all about. Also, Vinay, before you leave the class, agenda is you tell them about how IIM functions, what they expect from a student, and how much improvement they actually have to do in their personality. ये आपको बताना पड़ेगा बच्चों को, right? Sure, ठीक है sir. पंकज, रोहित. Yes, sir. I am out, and the show is all Vinay's now. Take care. Vinay, once Yes. the class is over, not spend more than like 9:30 is maximum. उससे ज़्यादा नहीं stretch करना. And then once you're over, drop a message. We'll call the class off, right? Sure, sure, sir. Take care, all of you. God bless you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll Thank ask you, the sir. feedback once it is over. Bye. Take care. Sure, sure. Bye. So, कैसे हो सब लोग? बस बढ़िया बढ़िया भाई, तुम सुना है? ये यार तो अभी रिजल्ट तो ना आउट हो गया इसका? नहीं रिस्पॉन्स शीट आई। ओके, सो अभी एक बार 2 मिनट के लिए तुम्हारा अगर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो एक बार वन बाय वन वो कर लेते हैं. देन अगर मुझे कुछ लगे कुछ फिलर है कि कुछ अपने को ऐड ऑन करना है, देन विल डू दैट आल्सो. देन उसके बाद वाई एमबीए वो एक बार बताओगे तो उसके बाद प्रिसाइज करवाऊंगा कि उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं अपन. ओके, ओके। तो अभी 2 मिनट लो. अभी तुम पढ़ लो तुम्हारा क्या है, उसको देख के बोलना, देख के बोल दो अगर लिखा हुआ है, वरना आप कर लो एक बार 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर. ठीक है? ठीक है। यस हुआ प्रिपेयर? यस हम्म यस हाँ हो गया। चलो पंकज भाई आपसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है? यस Good evening, sir. My name is Pankaj Soni. I am from Bawdi, which is a small town in Jodhpur, Rajasthan. Recently, I graduated with a degree of commerce from JNI Vyas University, Jodhpur. I completed my 12th from Jodhpur, and I started my education journey from my town Bawdi, and I also completed my secondary education from here. Talking about my academics, I have a certification course in RSCIT to enhance my computer skills, and I topped my school in maths board exams. And addition in academics, I actively engage with GK quiz competition, essay writing, and talking about extracurricular. One of the key highlight have was my participation in a 3-day camp of Swachh Bharat Abhiyan in our school. I am the key participant in the 14 members of group, and our work to awareness in people about Clean India mission, and we use slogans and route march and talk. And I am a cricket lover and fitness enthusiast. I love the thrill of the game, and I enjoy the gym workout. Talking about my strength, I described myself as a positive and dedicated person. One area I continuously working or my emotional control, and I am think too much. I want to but I want to pursue MBA because I want to learn about management skills and grow for shaping in future. मैं फीडबैक भाई तीनों का लेने के बाद देता हूँ. ठीक है ना? Yes. ऐसे एक करके. ठीक है, तो रोहित भाई अब आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. Yeah, so good evening, Vinay. My name is Rohit, and I am from Bawdi, Jodhpur, which is a small town in Jodhpur, Rajasthan. And the name of the town is named after the step well there. I hold a degree in Bachelor of Commerce from Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, Rajasthan. And I completed my higher education from Jodhpur as well. And my education journey started from my town,
where I completed my secondary education, and I topped in business studies in my board exam in school. And in addition to my academics, I was also taking participation in GKQs and essay competition. In extracurriculum, I my participation was in camp, 3 days camp, which is Swachh dedicated to Swachh Bharat Abhiyan. Uh, I was a key participation in a 40-member group, and our motive was to motive was to aware about the cleanliness, including the area, open defection, open defection free area, including uses of wet garbage in composition, and emphasizing the emphasizing the recycling of dry garbage. And in extra if we talk about sport front, I was privileged to be captaining in my school team, and I was a key player in my sub district cricket team. And I am passionate about cricket and working out. I find joy in both competitive competitive spirit in cricket field and discipline working out in the gym. And I have certification course in RSIT, which showcasing my proficiency in essential computer skills, and pursuing MBA to enhance my leadership skills, and emphasize enhancing my professional network and opening up new opportunities. And my dream is to contribute my skill and leadership in a leading position in a reputable MNC after completing my MBA. That's it. ओके भाई, राइट, बढ़िया. सो साक्षी, प्रिपेयर है तुम्हारा? Hello everyone. My name is Sakshi Rajoria. I belong from Mount Abu, Rajasthan. I decided to pursue science after my class 10th. I was the head captain of Topaz House in my school days. After 12th, I did my bachelor's in computer application from Hemchand North Gujarat University. Um, in my free time, I used to चलेगा, read. अगर तुम चाहो तो देख देख के बोल सकती हो एक बार, क्योंकि वो क्या है, एक बार आ जाएगा ना फ्लो, तो चलेगा. रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तुम्हारा. फिर से देख पूरा. देख के बोलो बस. हाँ हाँ, देख देख के बोलो पहले. Hello everyone, my name is Sakshi Rajoria. I belong to Mount Abu, Rajasthan. I decided to pursue science after class 10th. I was the head captain of Topaz House. After class 12th, I pursued bachelor's in computer application from Hemchand North Gujarat University. In my free time, I like to do painting, drawing, and sometimes I used to write. My strength is I am a good listener as well as I have a good communication skills. That's it. तो देखो पंकज भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं. देखो, एक तो इंटरव्यू में बैठना है ना, तो एक बैठने का एक तरीका होता है. मतलब एक आपके क्या हाथ बहुत हिल रहे थे, तो अच्छा. मतलब जो बॉडी पार्ट अपना दिखना चाहिए वो ठीक है, बट हाथ मत ऐसे ज्यादा नहीं हिलाए. मतलब कभी कभी बता दिया कि कुछ, पर वो आप एक कंटिन्यूस हिल रहे थे, वो नहीं है. दूसरा, आप अपनी लाइफ में क्या हुआ उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दे रहे हो. देख, मैं बाउड़ी से हूँ, फिर मेरी 11th 12th वहीं से हुई, फिर कॉलेज वहीं से हुई, फिर आपने दोबारा बता दिया कि मेरा 11th 12th और मेरे स्टडी वहीं से हुई है. तो उतना नहीं बताना. एंड देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट आई टॉप्ड माय ग्रेजुएशन, आई गेस तुमने ऐसा बोला था कि आई टॉप. स्कूल बोर्ड एग्जाम. हाँ, स्कूल बोर्ड एग्जाम. टॉप नहीं बोलना. टॉप माने यू आर द नंबर वन इन दैट एग्जाम, इन द बोर्ड एग्जाम. इट मीन्स इन राजस्थान और इन योर डिस्ट्रिक्ट. तेरे को स्पेसिफिक डाटा देना है. आई गोट दिस मच मार्क्स. पोजीशन तू पहली बता, तीसरी बता, उसको नहीं मतलब, बिकॉज उसने तेरे से प्रूफ नहीं लेना इंटरव्यू में. बट एट द टाइम तुम बोलेगा, अगर मान ले अब तेरे 76% है, लेट्स हाँ. सपोज you say 76% in your board exam, and then you say कि that I topped my board exam with 67%. उसको शक हो जाएगा हम्म. कि क्योंकि आपने अपना रिज्यूमे पहले भेज दिया होता है. उनको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में 76 इज नॉट मैक्सिमम मार्क्स. यू Yeah. आर
you were the topper in your school but not Yeah. in the board exam. So you have to tell that I was topper of my school with 76 percentage. Okay. तो Yes. डेटा के साथ उसको स्पेसिफिक चीज बता देते हैं, तो उस पर अगर क्वेश्चन ही पूछता है तो उससे रिलेटेड होता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम बोल दोगे देन उस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर आपके आगे फंस जाओगे। ठीक है। मैंने सो स्पेशल मैथ सब्जेक्ट का बोला था। मैं सब आई स्कोर 99 आउट ऑफ 100 इन 10th मैथ्स। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने बोर्ड एग्जाम बोला था। ओके। तो बोर्ड एग्जाम में किसी के 100 भी आए होंगे ना। मैं हाँ बोल ये। रहा हूँ एक स्पेसिफिक बता दो आप उसको, आपने एक नंबर नहीं दिया और हम्म। आपने एक जनरिक टर्म बोल दी कि बोर्ड एग्जाम टॉप किया था। एंड वी ऑल नो दैट बोर्ड एग्जाम टॉपर कौन होगा। वो बाद में पता करेगा तो उसको पता चल जाएगा। वो झूठ नहीं चाहता, वो चाहता आपके दिमाग में क्लैरिटी हो। देन आप बोल दो टॉकिंग अबाउट नहीं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, If इस we चीज के talk बारे में बात करें, वो ग्रामर मिस्टेक थी कि टॉकिंग अबाउट नहीं टॉक अबाउट, उसको सही कर लेना। देन आपने बोला कि आई माई वीकनेस इज आई थिंक टू मच I तो think ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा सोचना तो अच्छी चीज होती है। यू हैव टू से दैट आई माई वीकनेस ओवर थिंक। इवन आई वुड से कि आप बोलो ही मत कि आपकी वीकनेस ओवर थिंक है, क्योंकि ओवर थिंक वीक मतलब एमबीए में ये चीजें वीकनेस होती नहीं है। वीकनेस ऐसी बनाओ जिसको आप सुधारते हो तो कुछ प्रोडक्टिविटी आती है आपकी लाइफ में। समझे मेरी बात। yes। और मतलब आप एक बेसिक परफॉर्मा इंटरव्यू का ये होता है कि आप अपना नाम बताओ विश करने के बाद। हम्म। देन आई बोर्न एंड ब्रॉट अप, मैं वहां ओके। पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ, इतना बताओ। देन आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की वो बताओ। सिंपल तीन चीजों में लाइन बता दी। देन डायरेक्टली जंप टू एक्स्ट्रा करिकुलम, ओके। कि आपने एक्स्ट्रा, आप बता रहे थे कि आपने वो स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया, फिर कुछ आपने क्रिकेट पकड़ा है नहीं। ये बताओ तो आपने क्या किया। ये बोलो कि मैंने ये किया। आपकी एकेडमिक अचीवमेंट हो जाती है कुछ, हम्म। नेम बताया, आपने हम्म। प्लेस बताया कि आप कहाँ पैदा हुए और कैसा हुआ। फिर हम्म। ग्रेजुएशन बताने के बाद आपको बताना है आपकी एकेडमिक अचीवमेंट इफ देयर इज एनी। लाइक जैसे आपकी दोनों, तेरी और रोहित का तो मुझे पता चल गया कि दोनों ने सेम ही टेल मी समथिंग अबाउट बोला है। तो हम्म। उसमें क्या, अगर आपने आरएससीआईटी करी है तो वो अच्छी चीज है। तो हाँ। वो एकेडमिक एफिशिएंसी बता दो कि एकेडमिक आपकी अचीवमेंट क्या है, कि यू आर द लाइक सर्टिफाइड कंप्यूटर एक्सपर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरएससीआईटी शायद राजस्थान वाली गवर्नमेंट का ही है ना। वो हाँ बता सकते हो। राजस्थान हम्म। बट उसके बाद आप ये नहीं बता सकते कि मैंने ये किया आपको बताना है कि इन एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट कि इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट में मैंने क्या क्या किया है। देन उसके पॉइंट वन बताओ। वहां आपका ये नहीं दिखना चाहिए आपने क्या किया, वो रिलेट होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट के हिसाब से बने हो या नहीं बने हो। समझो। तो आपने हम्म। उस चीज में मैनेज टर्म लानी बहुत जरूरी है। लाइक आई वाज इन द स्वच्छ भारत अभियान बट वट यू डिड उसमें मैनेज, आई मैनेज दिस थिंग उसमें मैनेज साउंड करेगा तो वो समझेंगे कि तुझे मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है। हम्म। ओके। तो बस ये कुछ हम्म। चीजें थी। तो बेसिक परफॉर्मा मैं बताऊंगा लास्ट में, थोड़ा तो बता ही दिए। सिर्फ रोहित हम्म। भाई आपका भी था। आप जैसे हम्म। पंकज भाई हाथ हिला रहे हैं आगे पीछे, आपका क्या था। हम्म। आप आगे पीछे खुद हो रहे हो। हम्म। उसको इरिटेट नहीं करना इंटरव्यू को। देखो उसके मन में है आपको कितना भी स्कोर दे। कैट का स्कोर आपका बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, पर हम्म। हल्का भी बॉर्डर लाइन पे तो वो मैटर करता है इंटरव्यू का स्कोर, और काफी अच्छा होता है वो। हम्म। ठीक है। इंटरव्यू में स्कोर अच्छा मिल जाता है जनरली। बस आपको उसको बोर नहीं करना, उसको अपने आप में ऐसे उलझाए रखना है कि आप एक मिस्ट्री बुक को, और उसमें अगर कोई भी चैप्टर खोलोगे तो उसको अच्छा ही लगेगा। दूसरा इरिटेट नहीं करना। हम्म। आप जैसे पंकज भाई हाथ हिला रहे थे और आप आगे पीछे हो रहे थे, वो उसको इरिटेशन है कि ये इंटरव्यू दे रहा है या बातें कर रहे हैं नॉर्मल। और दूसरा, अच्छा। वही आप भी सिमिलर पंकज की तरह ही बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहे थे अपनी स्कूल हम्म। लाइफ को। कि ये उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, कि पहले नाम बताना है, हम्म। हम्म। फिर आप कहाँ से हो एक ही लाइन में, आई बोर्न एंड ब्रोट अप इन बाउडी राजस्थान या जोधपुर राजस्थान। ठीक है, सिंपल खत्म। देन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस। हम्म। एंड ग्रेजुएशन किया गया जैसे बीटेक की बीकॉम की, ये बताना है खत्म। उसके बाद हम्म। सीधा आना है कि एकेडमिक अचीवमेंट मेरी ये थी, जो आपने बोला कि मैंने टॉप किया। तो वो टॉप बता देना कि आई वॉज गुड इन मैथ सो आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम भी कौन सा, 10th या 12th, तो बता देना। वो एक अचीवमेंट हम्म। होगी। पर जब आप डेटा दे देते हो तो उसको पता चल जाता है कि आप कितने ज्यादा अच्छे हो। टॉपर तो 76% वाला बताया ना मैंने, वो भी होता है, पर एक हम्म। 99 अलग दिखता है। तो उसको डेटा देना है, डेटा अपन को। ठीक है। देन वही कि नहीं आपका पंकज मतलब के साथ। हाँ।
हम्म, आवाज आ रही है मेरी? भाई आ रही है, आप बोलो ना। अच्छा, मैं बोल रहा जैसे मैंने बताया था ना, आई टॉप इन बिजनेस स्टडीज इन माई स्कूल इन बोर्ड एग्जाम। यानी मैंने स्पेसिफिक कर दिया, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है बोर्ड एग्जाम हाँ में। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे एक स्पेसिफिक डेटा भी देना, उसको पता चलना हाँ। चाहिए। जैसे आपके बहुत कम है तो मत बताओ, पर अच्छे हैं, जैसे उसने बोला 99 है, तो आपको बताना हम्म। पड़ेगा, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। देखो एमबीए डेटा खेल है, अगर आप एमबीए आई में भी आओगे या किसी भी कॉलेज में जाओगे, आप कोई भी चीज अप्लाई करोगे, आपको अपना प्रूफ देना पड़ता है। आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। एट द सेम थिंग, अगर आपको उनको कन्विंस करना है, तो आपको डेटा देना पड़ेगा। आपका और पंकज का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम था, बस कमियां थी जो मैंने बताई कि वो हाथ हिलाता है और आप आगे पीछे होते हो, बॉडी मूवमेंट हम्म। कंट्रोल में रहो। दूसरा, थोड़ी ग्रामर सुधार लो, इंग्लिश की थोड़ी सी हल्की सी। मतलब एक चैट जीपीटी है, उससे एक प्लेटफॉर्मा बना लो, आपको वो हम्म। रट के बोलना है, ठीक है ना। कुछ चीजें वो पूछता है तो वो आपको बतानी है। कुछ हम्म। ऐसी चीज मत बोलो, जैसे आपने क्रिकेट बोला, भाई हम्म। क्रिकेट बोलोगे वो कुछ भी पूछ लेगा। कुछ अच्छा। भी, फिटनेस एंथुसियास्ट बोल रहे हो, कुछ भी पूछ लेगा। हॉबी एक ऐसी बनाओ जिसका आपको सब कुछ पता हो। आप क्रिकेट बोलोगे, आप फिटनेस बोलोगे, वो कुछ ऐसी चीज पूछ देगा, आप नहीं बता पाओगे। जैसे मेरा हुआ था आईटी दिल्ली का इंटरव्यू, मुझे एक हम्म। बेसिक चीज नहीं पता थी कि एक आईटी दिल्ली से स्टैंड अप कॉमेडी निकला है, कॉमेडी। उसने पूछा अच्छा। वो कहाँ से पढ़ा है पता है, एंड देन मैं भूल गया था कि वो कहाँ से पढ़ा है, बस एक चीज वो भूल गया था, एंड देन मेरा उससे फकडअप हो गया पूरा इंटरव्यू, और मुझे ली नहीं लिया उन्होंने। एक मार्क्स से ही पीछे रहा था मैं, वरना मेरा हो जाता। तो वो बात है कि आप उससे झूठ बोलोगे। मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी हॉबी है स्टैंड अप कॉमेडी, बट मेरे को हम्म। डाटा याद नहीं था। और अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको सच में कुछ नहीं पता, समझ रहे हो। तो आप फिर हम्म। फंस जाओगे, और फंस जाओगे मतलब उसको पता चला कि वो मेरे को काटना चाह रहा है, और वो फिर आपको नहीं लेगा, फिर वो आपको आइदर तभी बंद करवा देगा या लेके भी आपको काटेगा, समझ रहे हो। तो झूठ कुछ नहीं बोलना है। फिर साक्षी, तुम्हारा तो बेसिक था एकदम, इंट्रो बेसिक था, मतलब उसमें अभी ऐड ऑन करना पड़ेगा अपन। गैप ईयर है तो गैप ईयर अपन गैप नहीं दिखा सकते, जैसे अभी ग्रेजुएशन तुम्हारी कब हो गई और अभी कैट तुम्हारा अब निकला है, तो इसके बीच में खाली टाइम था, अपन प्रिपरेशन ही नहीं दिखा सकते। प्रिपरेशन दिखाना, इट मीन्स दैट कि हमने प्रिपेयर ही किया है। एंड दे ऑल्सो नो दैट कैट इज नॉट दैट मच टफ कि आप इतना प्रिपेयर करके निकालो। आप उनको ये बताओ कि मैं प्रिपेयर करने के दौरान कुछ कर रहा था, आइदर मेक फेक सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनजीओ और एनीथिंग, और या बताओ कि मैं अपने पेरेंट्स के बिजनेस में काम बटा रहा था, या कुछ ऐसा बताओ। सर्टिफिकेट ना हो, बट वही है कि पापा के धंधे का नॉलेज आपको होगा, आप क्या कर, पापा क्या करते हैं, हम्म। ठीक है। उसके बेसिक चीजें पता रखो, तो उसको लगना नहीं चाहिए कि आप सिर्फ वही चीजें कर रहे हो, आपका मैनेजमेंट में है। तो अपन अभी बनाते हैं, अभी अपना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ स्टार्टिंग से, ठीक है। Yes. तो ठीक है। सबसे पहले किस करना है अपने को, उसको उसके बाद अपना नाम बताओ कि मेरा नाम क्या है। देन हम्म। उसमें ये नहीं बस माई नेम इज ही बोलना, ये नहीं माई सेल्फ नहीं होता, दिस साइड ये नहीं होता, माई नेम इज। उसके बाद आता है कि मैं कहाँ से हूँ। अब मुझे या तो देखो यार, मेरी जैसे तुम जोधपुर से हो और हम्म। बावड़ी से हो, तो बावड़ी का बहुत कुछ कुछ अच्छी चीज है, बहुत कुछ हम्म। अच्छा है, फेमस है, तो उसके साथ अटैच करो। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम लखनऊ। हम्म। लखनऊ नवाबों का शहर है, हम्म। हम्म। सुन ना। वो अटैच हो गया तो वो उस पे चला जाएगा। अब बावड़ी या जोधपुर की कुछ फेमस चीजें हैं, देखो अगर या तो बावड़ी मत बोलो, तो हम्म। हम्म। बावड़ी की अगर कुछ फेमस नहीं है, तो जोधपुर का कुछ फेमस है तो जोधपुर, जैसे माउंट आबू है, माउंट हम्म। आबू राजस्थान का शिमला जाना जाता है, हम्म। Yeah. ठीक है। तो बताओ ना कि आई बोर्न एंड ब्रोट अप फ्रॉम इन माउंट आबू फ्रॉम इन राजस्थान, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ शिमला ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो वो कनेक्ट हो गया कि शिमला क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको आपसे जानना है कि आपको अवेयरनेस कितनी है, ठीक है। एक चीज ये जानना चाहता है कि हम्म। आप मैनेजमेंट क्यों आना चाहते हो, क्योंकि आपका मैनेजमेंट पास्ट है भी या नहीं है। और हम्म। दूसरा, आप अवेयर कितने हो अपने सराउंडिंग को लेके। तो आप ऐसे बोल सकते हो जोधपुर किस चीज के लिए फेमस है, ये मिर्ची बड़ा मत बोलना, ठीक है ना। Blue City. ब्लू ठीक सिटी है हो ना गई भाई। ये, है ना, तो कोई अच्छी चीज होगी ना वो बोलना। फिर उसके हम्म। बाद आता है कि अपना ग्रेजुएशन, तो मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया है, कहाँ से किया है और कब खत्म हुई मेरी, ये तीन चीजें बता देनी। लाइक आई ग्रेजुएट फ्रॉम IIT ISM धनबाद इन 2021, स्पेशलाइज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने मैकेनिकल करी है, हम्म। आईआईटी से करी है, और 21 में खत्म करी है, तो इसने मेरा तीन डाटा एक लाइन में खत्म हो गया। देन मैं बोलूंगा इन माई दीज ग्रेजुएशन ईयर, मेरी ग्रेजुएशन ईयर से मैंने क्या क्या किया। देन मैं एकेडमिक अचीवमेंट मेरी होगी तो बताऊंगा, इन एकेडमिकली, एकेडमिकली मैंने ये किया,
और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा। और एक्स्ट्रा को जैसे मैं एक्स्ट्रा करिकुलर बताता था कि आई वाज हेड ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रमोशन एंड आल्सो मर्चेंडाइज सेल्स। इन दैट आई वाज सेलिंग our merchandise of our cultural fest, and at that time I sold 1200 of merchandise in our cultural fest। so वो दिखाता है कि मैंने मैनेज किया फेस्ट का 2 लीड्स, प्रमोशंस एंड मर्चेंडाइज सेल्स। और मैंने आंकड़ा किया कि 1200 मैंने मर्चेंडाइज सेल्स की। दैट शोज कि मेरे पास एक आंकड़ा है जो मैंने करी। अब वो पूछता कैसे करी, तो डिफरेंट थिंग थी, पर मैंने दिया एक्स्ट्रा करिकुलर में। देन आई टोल्ड कि दैट आई वाज कोऑर्डिनेटर ऑफ IIT ISM धनबाद हॉकी टीम एंड को फाउंडर ऑल्सो। तो ये बताता है कि मैंने कोई चीज लीड करी। को फाउंडर कोऑर्डिनेटर लीडरशिप दिखाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, कि मैंने ये क्या किया। देन मैंने बोला कि आई हैव वर्क एक्सपीरियंस इन टेक्निकल सेल्स एंड सर्विस इन अल्फा लवाल एज एन MNC। सो उसको ये बताता है कि मैंने एक सेल्स का मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो मेरे को सेल्स आता भी है। तो उसको मैंने हिंट दिए कि मैं मैनेजमेंट क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट लाइफ पूरा मैनेजमेंट के ऊपर ही चल रहा है। जैसे अभी तुम बीकॉम या BBA हो, तो बोलेगा कि BBA या बीकॉम से सीधा इधर क्यों आ रहे हो। तो तुम्हें बताना है कि वो मैंने वहां किया और वहां मेरे को फील हुआ कि मुझे आगे MBA करनी है, कि मेरा पूरा ध्यान मैनेजमेंट में है। एंड देन समवन गाइडेड मी, कोई किसी ने मेरे को गाइड किया कि आप मैनेजमेंट में अच्छे हो, आपकी ये स्किल अच्छी। जैसे किसी को फाइनेंस में करना है, तुमने भी सोचा किस में करना है, सेल्स में, फाइनेंस में, किसी में तो करना होगा। तो बोलो कि किसी ने मेरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपके स्किल्स अच्छे हैं। देन आई थॉट कि उसने बताया कि एक MBA करके कॉलेज होते हैं IIM, आप वहां से करोगे तो एक अच्छा एक्सप्लोरेशन मिलेगा, एक्सप्लोर करोगे लाइफ होती क्या है। देन फिर मैंने प्रिपेयर स्टार्ट किया और मेरा एडमिशन हो गया। तो उनको दिखना चाहिए कि आपकी ये MBA की प्लानिंग चल रही है, एट रैंडम आपने क्रैक नहीं किया क्या, आप में कुछ टैलेंट था मैनेजमेंट का और आपको किसी ने गाइड किया, तो आप यहाँ आ गए, समझे। यस। हम्म। एंड देन स्ट्रेंथ और वीकनेस इसमें मत बताओ भाई, देखो अच्छा। स्ट्रेंथ वीकनेस इसमें मत बताओ। तुमने दोनों ने बताई, साक्षी ने नहीं बताई, साक्षी ने भी बताई थी शायद। मैंने कहा साक्षी ने बताई, बताई, मैंने नहीं बताई ना। नहीं मैंने नहीं, भी नहीं। अरे हाँ मेरा मैं दो ही वर्क तीनों ने बताई। मेरा मैंने वर्क बताया एक्सपीरियंस का बताना था, भूल गया। हाँ नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। देखो अपने को जो बेसिक चीज मैंने तुम्हें बताई ना, 3 चीज बता दी। फिर कॉलेज में आपने एक्स्ट्रा करिकुलर और एकेडमिक क्या किया वो बता दो। हम्म। उसके अलावा जो किया एक्स्ट्रा करिकुलर वो बता दो। उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं बतानी। ओके। स्ट्रेंथ वीकनेस पूरा अलग क्वेश्चन होता है, वो अलग से पूछेगा तब बताओ। और ये ओवर थिंकिंग वगैरह नहीं होती वीकनेस भाई। हम्म। वीकनेस कुछ ऐसी बनाओ जो आप इंप्रूव कर रहे हो तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है। ओवर थिंक कुछ वीकनेस नहीं होती, ठीक है। फिर आओ आप अपनी हॉबी पे कि आपकी हॉबी क्या है। अब हॉबी एक ऐसी चीज होती है जो प्रोडक्टिविटी हो, जैसे गिटार बजाना। तुम्हारी तीनों की हॉबी क्या क्या है? क्रिकेट और जिम। वर्कआउट। क्रिकेट। और आपका रोहित भाई? क्रिकेट और वर्कआउट इन द जिम। ठीक है, साक्षी आपका? पेंटिंग, ड्राइंग। ठीक है, तो देखो रोहित भाई और पंकज भाई, आपका क्रिकेट और वर्कआउट है। हम्म। हजारों क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप श्योर हो कि क्रिकेट पे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हो, कोई भी, हम्म। मतलब क्रिकेट जब से स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक, भले आप हम्म। रात को जल्दी सो गए और कल रात को कुछ अच्छी चीज हो गई, वो हम्म। पूछेगा नहीं बता पाए तो इट्स मीन दैट आप इंटरेस्टेड हो, आपकी हॉबी नहीं है, अच्छा। समझे। और ऐसे हम्म। पेंटिंग में साक्षी फेमस पेंटर, वो किसने बनाई, तुमने क्या क्या बनाया है। इधर आप इसमें ये बोल सकते हो कि सर currently I do like to do these things. I am interested in cricket nowadays and I'm beginner in painting। मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरे को लाइफ में श्योरिटी है कि मुझे करना है कुछ ना कुछ, बट मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मैं किस में बेटर हूँ। खुद को हम्म। एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं, वैसा सीन है। तो बस हॉबी बता के देन वो दैट्स इट हो जाएगा। देन आपको अपने वही है कि देखो अपने बता दिया कि जैसे होम टाउन है वो, उसमें क्या स्पेसिफिक अच्छा है, ठीक हम्म। है। उस वो वहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। देन आपने एकेडमिक अचीवमेंट होगी और एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट होगी, उनमें अगर उसको कुछ लगेगा कि आपका अच्छा है तो वहां से हम्म। क्वेश्चन उठाएगा। हम्म। और हॉबी से अगर कुछ अच्छा लगेगा तो वहां से क्वेश्चन उठाएगा। तो 3 पार्ट होते हैं आपके, जहां से उसको कुछ अच्छा लग सकता है तो वो हम्म। उठाएगा। और उठा रहा है तो मतलब अच्छी बात है कि वो कुछ जानना चाह रहा है। हम्म। वरना वो फिर YMBA या स्ट्रेंथ वीकनेस पे आता है, ठीक है। तो ओके। अभी 5 मिनट लेते हैं अपन, हम्म। अक्षी। या। हाँ 5 मिनट लो या 7 मिनट लो तुम, मतलब हम्म। 37 हो रहे हैं, 45 पे तुम जो मैंने बताया है उस बेसिस पे एक अपना इंट्रो तैयार करो। फिर एक एक बार इंट्रो लेंगे,
फिर YMBA पे चलेंगे, ठीक है? अरे मैं पूछ चलेगा? रहा था जैसे, हाँ हाँ, पूछो ना भाई। मैं बोला जैसे ये एक्स्ट्रा करिकुलम एकेडमी बताने के बाद ही अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओ या उससे पहले? अरे देखो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की, एंड इन द ग्रेजुएशन ईयर्स मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं उसके अलावा क्या कर रहा था वो बताना है। देन मेरा वर्क एक्स ये है, और उसमें मैंने ये क्या है, समझे? कॉलेज के टाइम पे जो अचीवमेंट्स थी वो बतानी है, और फिर वर्क एक्स आ जाना है, ठीक है? कॉलेज में कुछ यार किया नहीं है, अचीवमेंट कुछ नहीं नहीं है, वो किया। बात है। तो यार, किया तो किसी ने कुछ नहीं है लाइफ में। पर तो आपको मतलब, बताना है कि आप बहुत फाड़ू आदमी हो और आपने जिंदगी में कुछ किया है, अच्छा। तभी लेगा वो। समझ रहे हो आप? तो आपको बताना है कुछ, वो सर्टिफिकेट्स नहीं मांग रहा, पर ऐसा कुछ बताओ जो आप करते थे और आपको उसको नॉलेज है, भले थोड़ा सा भी किया हो। मतलब मैं ऐसे एनजीओ में बता, था, मैं 1 साल के लिए था, पर मैं बता देता था। हाँ पंकज भाई मतलब बोलो। कॉलेज टाइम मतलब ऐसे बता रहे थे, देख पापा की शॉप है उसमें हेल्प कर रहे थे, नहीं नहीं, वो नहीं वो वो नहीं नहीं वो मतलब, नहीं वो नहीं। वो गैप हाँ, ईयर्स वो में आप बता। ऐसे बता सकते, वो आप ऐसे बोल सकते हो। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय कॉलेज, आई यूज्ड टू हेल्प माय फादर इन द बिजनेस, शॉप नहीं, बिजनेस। बिजनेस। Said that also motivated me to डू बिजनेस इन लाइफ और मैनेजमेंट इन लाइफ। मतलब वो रिलेट हो गया ना कि बिजनेस में काम करता था, यही तो एमबीए है। हम्म। एमबीए बिजनेस सिखाता है, वो आपने करा है। वो ऐसे बोलना है, शो मत बोलना, बिजनेस बोलना। बिजनेस। तो अभी 45 तक का टाइम है यार, तुम हम्म। प्रिपेयर करो वो इंट्रो, फिर आके एक इंट्रो लेते हैं, फिर YMBA, ठीक है? हम्म। हम्म। चलेगा, तुम प्रिपेयर करो, मैं आता हूँ 1 मिनट।
सॉरी। हुआ। हम्म। साक्षी म्यूट हो तुम। चल रहा है। चलो एक बार हो जाए तो बता देना, ठीक है। यस। हाँ ऐसे हो गया है, लेकिन ये कॉलेज वाला ही नहीं मिल रहा है, एकेडमिक्स वाला सोचना पड़ेगा इसके लिए। हाँ देखो यार, लाइफ में जैसे क्या किया है स्कूल में या कॉलेज में, स्कूल की बात नहीं, कॉलेज में भी कुछ तो किया होगा। मतलब स्कूल में तो सबने मजे किए होते हैं, पर यार देखो ऐसा है ना कि देखो उसके अलावा आपने कुछ, जैसे मैंने भी मजे किए हैं, पर एकेडमिक अचीवमेंट कुछ नहीं है तो मत बताओ, पर एक्स्ट्रा करिकुलर तो कुछ होगी। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब कॉलेज की नहीं होती, कॉलेज के अलावा आपने क्या किया, जो वो स्वच्छ भारत वाला बताया, कॉलेज के ड्यूरेशन में किया होगा, ठीक है, तो बताओ। स्कूल ड्यूरेशन में क्या वो मतलब सच फुल में? टाइम किया। हाँ मतलब वो बता दो ना कि स्कूल के टाइम में किया है। मतलब मैं ठीक है। बोलना चाह रहा हूँ कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर या स्कूल सर्टिफाइड चीजें हो जरूरी नहीं है, अच्छा। स्कूल के बाहर भी कुछ किया है वो, पर उस पैटर्न में बताओ कि उसको लगे कि हाँ, तो पहले आपने अपना ब्यौरा दिया, देन अपनी लाइफ में क्या किया वो ब्यौरा दिया, देन हॉबीज पे आ गए और वर्क एक्स उसके बीच में अगर है तो डाल दिया। अभी जो अपन बात कर रहे थे, आपने क्या एक रैंडम चलता रहा, पहले तुमने अपनी लाइफ का एक्सप्लेन किया कि आप कहाँ से हो, फिर स्कूल कहाँ से किया, फिर स्कूलिंग दोबारा बता दी, और फिर उसके बाद उसी में कि आपने क्या, वो गोल मिल गया, उसको समझ नहीं आया कि आपने क्या क्या किया है। पहले एक बेसिक प्रोफोर्मा सेट करो, ट्री टाइप मान ले कि आपका नाम, कहाँ से हो, फिर कहाँ से क्या किया है, देन उसके बाद उसके अंदर किस कॉलेज में मैंने ये किया, स्कूल में मैंने ये किया, फिर मेरा वर्क एक्स, और फिर मेरी हॉबीज, ऐसा, ठीक है। एक पैटर्न स्कूलिंग बनना के चाहिए बारे ताकि वो कंफ्यूज ना हो। स्कूलिंग के बारे में बताना है या ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, पूछ रहा हूँ। देखिए यार, अगर तुम स्कूलिंग में कुछ अच्छा करके आए तो स्कूलिंग के बारे में हम्म। क्यों नहीं बताओ। जैसे ओके। ये नहीं, जैसे देखो स्कूलिंग में जैसे 11th 12th में तुमने कुछ किया अच्छा, हम्म। तो सबसे पहले तो मैं बोला है कि सबसे पहले तो बताना कि मेरी बोर्न एंड ब्रोट अप इन बाउडी राजस्थान, जोधपुर राजस्थान ओनली। जोधपुर राजस्थान। देन फिर अपने ग्रेजुएशन पे आना, फिर ग्रेजुएशन में क्या किया वो बताना, फिर कि हम्म। स्कूलिंग में भी मैंने ये किया है। हम्म। ऐसा नहीं कि वो स्कूलिंग में किया फिर स्कूलिंग में बताया फिर ग्रेजुएशन में नहीं। पहले एक बेसिक सेट कर दो कि तुमने लाइफ में ये किया है, फिर उस लाइफ में क्या किया है वो बताना है, ठीक है। जैसे अभी तो मेरे को ग्रेजुएशन के बारे में वो कुछ किया नहीं है, तो सोचने में टाइम, सीधा ही ग्रेजुएशन बताया फिर स्कूल बता दिया, स्कूल में जो देखो एक्टिविटी की है। अभी तुम्हारा कौन सा लेक्चर है, ये एमबीए मतलब का, मतलब ये प्रिपरेशन का, जीडी का।
एट्थ हाँ नाइन्थ। हाँ 8th 9th लेक्चर है। 8th 9th है तो अभी बहुत 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 टाइम है भाई, क्योंकि तुम्हारे फरवरी मार्च में इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। हम्म तो आ जाएगा किसी सब। हम भी जब लास्ट ईयर तुम्हारी जगह थे तो भाई नहीं पता था कि क्या कुछ किया। तो मैंने संख ने तो इंटरव्यू दे रखे थे, तो हमें पता था कि हमें क्या लिखना है। हम्म बट कुछ थे जिन्होंने नहीं, तो बनता है ऐसे। अभी मैं बस चाहता हूँ कि अगर तुम पैटर्न बनाना सीख गए और फ्लो बनाना सीख गए ना, उस पर बोलने लग जाओगे। समझे मेरी बात? हम्म तुम लिख लो, तुम लिख के पढ़ के बोलना मेरे सामने। मैं तुम्हारा कंटेंट चेक करना चाहता हूँ, तुमने कंटेंट क्या लिखा है। उसके ओके। बाद अपन फिर YMBA भी करेंगे। कंटेंट हम्म बनाना है, फ्लो तो आप पढ़ते रहोगे, बनता जाएगा। और फिर उस पे मैं क्या है, 3 4 अगर सेशन के बाद अगर सर दोबारा बुलाएंगे तो मैं आपको वही बोलूंगा ना कि देखो यहाँ हम्म आप फंस सकते हो, इस पे क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन भी करूंगा। अभी मेरा मेन पर्पज है कि कंटेंट बना लो तुम अपना। ओके। रोहित भाई तुम्हारा बन गया क्या? हाँ लगभग ट्राई करता हूँ मैं। बोलता हूँ मतलब स्टार्ट कर दूँ। हाँ नहीं नहीं, इनका ही बन जाए, डिस्टर्ब होंगे। नॉर्मल वैसे बात कर सकते हैं। ठीक। और बताओ इनको बना कैसे, लेना। कॉलेज कैसा चल रहा है? सॉरी। कॉलेज कॉलेज कैसा चल रहा है मतलब शेड्यूल कट रही कैसा है है? भाई। मतलब MBA मेरे लिए तो वर्थ इट नहीं है, बस निकाल रहे हैं। क्या मेरे को बात उतना अच्छा नहीं लगा MBA करके, मतलब जितना इंजीनियरिंग अच्छा लगा था, नहीं नहीं अच्छा लगता। मतलब मेरे को लोग अच्छे लगे यहाँ के, थोड़े मतलबी ज्यादा है। तो मुझे उतना, मतलब तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अभी अब मार्केट जैसे तूने वर्केक्स बोला, तेरा वर्केक्स तेरी सैलरी है कुछ, तो उससे है? तेरे को ऊपर की सैलरी मिलेगी यहाँ आके। कुछ हम्म। लोगों को इंजीनियर कम प्रेफर करते हैं कंपनी। आप तो वो वाला सीन है थोड़ा। मुझे मतलब माहौल अच्छा नहीं लगा यहाँ का, क्योंकि मैं फिर IIT से पढ़ लिया, तो मेरे को IIT का माहौल बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया। अब मैं अच्छा। इनमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा इन लोगों में, क्योंकि यहाँ थोड़े ज्यादा ही अजीब तरह के लोग हैं। मतलब कि आप जो बोलते हो वो होता नहीं है, वो है कि हम्म जो बोलेंगे वो करेंगे ही नहीं। वो वाली चीज सही है। है। स्कोर क्या क्या रह रहा है तुम्हारा, तुमने अगर वो चेक करी है तो? ठीक है ना मतलब 50-51 के आसपास रह रहा है। और तुम्हारा पंकज भाई? 48। यार 48 51 पे तो अच्छी खासी बननी चाहिए यार। मतलब इस बार पेपर भी टफ था तो लग रहा है नहीं। 95 तक बता रहे हैं, 52-53 पर। वो तो बहुत ज्यादा है भाई। लास्ट ईयर 95 तो कल्पना की थी, जो कोचिंग की टॉपर थी। हाँ यानी हम्म अरुण शर्मा खुद बता रहा है 51-52 पे 95 रहेगी। तो फिर तो, और तुम्हारी सेक्शनल क्लियर है? इंग्लिश में सेक्शनल का वर्बल है, में तो नहीं, VRC का है सेक्शनल तो। बाकी तो बढ़िया तो है। VRC में कितने कितने तुम्हारे? 9-9 है दोनों के। दोनों है बरोबर। अब तुमने तुमने पेपर भी एक साथ बैठ के दिया था, जैसे इंटरव्यू का तुमने टेल मी समथिंग एक साथ बैठ के लगाया होगा, बिल्कुल लगाया। कैसे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साथ बैठ के दिया है पेपर मतलब। यानी एक साथ मतलब थोड़ा गैप तो था 5-6 जनों का, अब क्या एक साथ क्या बताएं। अच्छा, मतलब एक रूम में ही सीट थी क्या? हाँ हाँ एक, एक क्योंकि इसने फॉर्म भरा एक था 1 घंटे सेम बाद मैंने फॉर्म भरा था, तो पास अच्छा। पास में आए। अरे सेम भाई क्या। हाँ थोड़ी लक होता तो और पास सब में आ जाते। रॉय एक VRC में VRC में 9 9 आ रहे हैं। कोई मतलब लास्ट इस। इस बार VRC कब आ गया? इस बार मैंने सुना VRC इजी था। हाँ बता तो रहे जी था इस बार। इस बार VRC इजी था। हम्म। सेक्शनल नाम आ जाए, देखो लास्ट ईयर भी 9 नंबर पे 53 55 के करीब बनी थी। और पिछली हम्म बार VRC बड़ा टफ था। इस बार VRC अगर इजी आया है तो लोगों के ज्यादा स्कोर आएंगे। तुम्हें बस हम्म VRC ना लेके बैठ जाए, बाकी तुम्हारा स्कोर तो अच्छा है भाई। यानी ARC बता रहे हैं यार 60 तक चला जाएगा, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम तो कितने 2200 जनों ने पेपर दिया था, तो एक परसेंटाइल में 2200 जने आ रहे थे। इस बार 2900 जने आएंगे एक परसेंटाइल में, तो 700 जनों का बढ़ गया ना, तो इससे भी अच्छा। फर्क पड़ेगा थोड़ा। और चलो जैसा भी है, अच्छा है। टिस भी भर देना इस बार, टिस IFT इसी से ले रहे हैं। हाँ टेस्ट टीम पेपर। इसका तो एक अलग CUET वो ले है रहा ना, है। सी हाँ वही। CUET। COT कराएंगे सर। देख लेना। बन गया कि तुम्हारा भी साक्षी, तेरा और पंकज तेरा भी? या बन गया मेरा लगभग हो गया। साक्षी तुम्हारा? चालू करूँ, थोड़ा सा बाकी है। चल कर ले कर ले।
शेड्यूल क्या रहता है वैसे विनय तुम्हारा कॉलेज में? मतलब कोई फिक्स टाइम होता है क्लासेस का या डे नाइट? भाई सही बताऊं तो लग जाएगी तुम्हारी। सच में? हाँ मतलब एमबीए टफ है थोड़ा। वैसे रिकॉर्ड हो रहा है तो अपन बात नहीं करते हैं ज्यादा। आई हम्म। विल इन्फॉर्म। बट एमबीए इज नॉट इजी। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि 2 साल चिल करेंगे तो मत करिए। ये सोचना ही मत। विद इन फर्स्ट वीक यू विल रियलाइज की दैट एमबीए इज नॉट फॉर अस। कुछ लोग एमबीए छोड़ के चले जाते हैं पैसे भर के। सो इट्स लाइक आईआईटी से पहले कितनी मेहनत करते हो, आईआईटी में बिल्कुल मेहनत नहीं होती। कैट से पहले बिल्कुल मेहनत नहीं होती और एमबीए में बहुत मेहनत होती है। ये जर्नी है एमबीए। ठीक है। तो अभी साक्षी स्टार्ट करते हैं। साक्षी ने लिख लिया होगा। अब रिवर्स मेरे चलते हैं। से नहीं, मेरे से नहीं। नहीं रिवर्स चल रहा है ना अपने। कोई ऐसा तो नहीं कि कंटेंट देखना है मैंने तुम्हारा। फिर कंटेंट मॉडिफिकेशन तुम अपने हिसाब से कल करना। ठीक है, ठीक है। ठीक देख के है बोलो। स्टार्ट। हाँ हाँ देख के बोलो। Hello everyone. My name is Sakshi Rajoria. I born and brought up in Mount Abu, Rajasthan. Mount Abu is the mini Shimla of Rajasthan. It is covered from forest and it is on the hill of the Aravalli range. After 12th, I pursued BCA from Hemchand North Gujarat University in 2021. In school time, I was a head captain of Topaz House. I was the captain of the basketball team, and I won so many dance competitions in my school time. In my drop year time, I was helping my father in his business. It was the vehicle company. साक्षी सॉरी टू इंटरप्ट यू बट ड्रॉप ईयर मेंशन मत करो। बताओ मत मेरा ड्रॉप ईयर था। अगर वो पूछे तो बताओ। आप पहले ही उसको निशाना साधने दे रही हो कि ड्रॉप क्यों लिया। कैट प्रिपरेशन के लिए तो फिर अब वो बिजनेस को साथ में कर रहे थे फिर बोलो कैट थोड़ा इजी था। नहीं ड्रॉप ईयर मत बोलो। मीन वाइल आई वॉज हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस। ठीक है ना। ड्रॉप ड्रॉप नाम मत लेना। Okay, अभी okay. कट कर लेते हैं। कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। Hmm. I won so many dance competition and बस इतना ही बनाया था। इतना ही होना है। ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। हॉबी नहीं बोली वैसे तूने। हॉबी मतलब हॉबी में इसमें लिख रही थी, मतलब कैसे लिखूं कि लाइक आई लाइक टू, जैसे बताया ना तुमने कि क्या बोलना था वो मैं भूल गई। इसकी एक लाइन होती है कि करंटली आई एम एक्सप्लोरिंग द पेंटिंग साइड ऑफ लाइक बोलते हैं ना कि मैं बिगिनर हूँ पेंटिंग में या माय हॉबी इज पेंटिंग एंड आई एम एक्सप्लोरिंग डाइवर्स एरियाज ऑफ पेंटिंग। देन तुझे वो देखनी पड़ेगी कि पेंटिंग के कितने तरह प्रकार की होती है कितने तरह की होती है। व्हाट टाइप्स ऑफ पेंटिंग। ठीक है। पेंटिंग के टाइप होते हैं तो वो आपको पता करना पड़ेगा कितने तरह की होती है। तो पता वो पूछेगा कि अच्छा आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो क्या एक्सप्लोर किया। तो पूछ लेंगे। तो करंटली आई एम या माई हॉबी इज पेंटिंग एंड करंटली आई एम एक्सप्लोरिंग द डाइवर्स टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। देन एक दो पेंटर के नाम याद करियो जो अच्छे हैं जिसको या तू फॉलो कर रही है। उसकी एक दो अच्छी पेंटिंग याद रखी होगी वो क्या है। तो बोल देना कि अभी मैंने उसकी एक पेंटिंग देखी थी बहुत अमेजिंग थी ऐसा बता देना। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है। ओके, ओके। तो रोहित भाई अब आपसे स्टार्ट करते हैं। So may I start? एक second. So, good evening. My name is Rohit, and I born and brought up in Jodhpur, Rajasthan, and Jodhpur is known as Blue City of Rajasthan. I hold a degree in Bachelor of Commerce from Jain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan. And in my college, एक सेकेंड पहले एकेडमी बताओ या जो मैंने कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलम किया वो बताऊं? हाँ एकेडमिक बता फिर एक्स्ट्रा करिकुलम आ जाना। So I topped in my business studies in my school with 95%, 95 marks. And I was also engaging in GK question and essay writing in my school and college as well. I I was part of a group in my college where we raise fund for families who were suffering from COVID-19. And
I have done also volunteering for the cows who were suffering from a lumpy virus. And in my school, I took part in a 3 days camp, which was dedicated to Swachh Bharat Abhiyan, and I was leading a group of member 40 member, and our mission was to raise awareness about the cleanness, including open defecation free area, and about including open face area and use of wet garbage composition, and uses of recycling of dry garbage. And I have 3 months of work experience as a process associate in US medical billing at NAC Global Jaipur. This has honed my problem solving skills and strategic management skills. And I am passionate about playing cricket and working out in the gym. I find joy in both competitive spirit in cricket field and disciplined workout in the gym. That's it. ठीक ठीक है भाई, देखो मेरे को क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो आपसे एक बेसिक. As you said, you learned like problem solving skills from your work experience. Can you please Yeah. explain your work experience, that what you were doing at that time? Yeah, so actually, our company working on the behalf of doctor in US. So the doctor sent the bill to the insurance company, and sometime bill got rejected, and that bill comes to me as a process associate. So we have to find why this bill is rejected. So we have to call, message, or email to the most probably to the calls to the insurance department, and we have to take instant decision that this claim is really denied. If it is denied, then we have to process and send another claim. Otherwise, it is not denied, it is denied wrongly, then we have to convince to the insurance company that this bill is denied wrongly, you have to reprocess it. So we have to take an instant solution over the call. ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा. Okay. ठीक है. पंकज भाई, वैसे तो आपका रोहित भाई जैसा सेम ही होगा, पर स्टिल चलो स्टार्ट बताओ आप भी. Good evening, everyone. My name is Pankaj Soni. I am born and brought up in Jodhpur, Rajasthan. Jodhpur is also known as Blue City of Rajasthan. I graduated from Jayanarayan Vyas University. A- I graduated in BCom from Jayanarayan Vyas University in 2023. During my graduation studies, I used to help my father in our business, and I have a certification course in RSCIT to enhance my computer skills. Talk about my academics. I scored 99 out of 100 in maths during my secondary education. But one of the highlight of my extracurricular involvement was my participation in 3 days camp, which was dedicated to Swachh Bharat Abhiyan. I was leading my group in this camp, and I love to play cricket and like gym workout. I enjoy thrill of the game, and I enjoy the gym workout. देखो, इसमें तुमने लास्ट में रिपीट कर दिया, और ऐसे जो तुमने स्विच लिया ना एकदम अपनी लाइफस्टाइल से अचानक हॉबी पे, वो ट्रांजिशन अजीब लगा, मतलब मेरे को लगा अचानक तो क्रिकेट पे चला गया, ट्रांजिशन अचानक ले लिया. एंड अच्छा. देन मत मत बट दैट टीचेस यू, तुझे अच्छा लगता है ठीक है, हम्म. थ्रिलिंग अच्छी, बट इट टीचेस यू. जैसे रोहित ने बोला डिसिप्लिन, तो मुझे अच्छा इसलिए लगता है Both. क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन लगता है. एंड देयर आई ऑल्सो लर्न टीम बिल्डिंग स्किल्स, Team लीडरशिप building, स्किल्स, strategic लीडरशिप. thinking, strategic हाँ, thinking. मतलब हजार चीजें हैं, मतलब कुछ गिनी, जैसे Yes. टीम लीडर, टीम Hmm. बिल्डिंग, ये चीजें मेरे को सीखने को मिले, डिसिप्लिन, ये चीज सीखने को मिलती है. Yes. तो ये अटैच करो. अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ तीनों को ही. तुम्हारे की पॉइंट्स हैं, सोचो उनको, एक एक लाइन में लिखो अलग अलग. की पॉइंट मतलब जो तुमने लाइफ में किया है अलग से, जिसका तुम्हारे पास नॉलेज है. फिर चैट जीपीटी करके एक एआई ऐप है, टूल है, ठीक है, पता है, उस पे Hmm. डालना हर Mhm. एक पॉइंट ना, कि प्रिपेयर अ इंट्रोडक्शन फॉर मी Hmm. यूजिंग दीज पॉइंट्स Hmm. और एमबीए इंटरव्यू. भाई वो जो लिख के देगा ना,
अच्छा, तुम्हें कितना याद होगा तुम उस पे डालना, इन 100 वर्ड्स, इन 200 वर्ड्स और इन 300 वर्ड्स। तो वो तीन तरह के देगा। अब हम्म सामने वाला जब आपसे पूछ रहा है, आपको तीनों याद रखने हैं। देखो भाई, सामने वाला आपसे जो पूछ रहा है, वो पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, लाइक इन ब्रीफ। तो ब्रीफ कर देना पूरा 300 या 200 वर्ड वाला। वो बोलेगा इन शॉर्ट बताओ, तो हम्म फिर वो 100 वर्ड। ओके इवन आई वुड से कि 200 वर्ड वाला याद रखो। वो क्या है, हम्म दोनों के बीच का होता है, तो आप उसमें क्या ज्यादा चीजें आ जाती हैं। 100 माले में होता है कि एकदम कुछ होता है ना कि स्टार्ट करना है। अगर मान लो 300 का 200 का याद नहीं रहा, तो 100 का तो पक्का याद करो, पर 200 वाला याद करने का ट्राई करना, ठीक है। हम्म तो अगली बार जो कोई भी क्लास ले, आज रात को मैं तो सजेस्ट ही करूंगी, बैठ के हम्म अपना चैट जीपीटी टूल से अपना पॉइंटर देना, अपने लाइफ में क्या क्या किया है, then लिखना हम्म कि मेक इंट्रोडक्शन ऑफ मी फॉर एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यू हम्म ऑफ 100 वर्ड्स, 200 वर्ड, 300 वर्ड्स, अलग अलग लिख देना, ठीक है ना। उससे वो क्या है, एक तो तुम्हें अच्छी वोकैबुलरी दे देगा उसमें, कि अच्छे अच्छे पॉइंट, ग्रामर वाली चीजें, अच्छी अच्छे अच्छे की पॉइंट्स डाल देगा। एमबीए डाल दोगे मतलब अब वो बिजनेस की चीजें डालेगा, मैनेजमेंट चीजें डालेगा। हम्म और आपने एक बार वो रट लिया, फिर बोलोगे तो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, और तुम नहीं यूज करोगे तो तुम्हारा कोई कंपटीटर कर रहा है आज इंटरव्यू के लिए हम्म उसी की तरह, तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये करना आज रात को करना, मतलब आज रात को ये चीज प्रोसेस करके वो आ जाए स्क्रीन पे, अपनी हम्म कॉपी पे लिख लेना। ताकि कल हम्म परसों जब भी तुम्हारी क्लास हो, कोई भी ले, मेरे अलावा कोई तो लेकर, दिव्य सर भी ले सकते हैं, तो हम्म आप कल कल सुबह में वो पढ़ लो 3-4 बार। तो अगर आप दोबारा अगर अपना इंटरव्यू बोलो, तो उनको लगे हम्म कि आपने एक सेशन में कुछ ग्रो किया है। ऐसा नहीं कि जो आप अभी बोल रहे हो वो ही कल बोलोगे, तो उसमें फिर फर्क नहीं रहा। इस क्लास का फर्क ये आना चाहिए कि आपने जो आज सीखा है वो कल इंप्लीमेंट कर दो, समझे। तो आज भाई ये कर लेना कि ये जो करके चैट जीपीटी से और पढ़ लेना कल सुबह, ताकि याद हो जाए आप। तो कल अगर कुछ उसमें कमी दिखेगी, तो कल जो भी होगा तुम्हारा सेशन लेने वाला, वो तुम्हें करेक्ट हम्म करेगा, ठीक है। हम्म अब आते हैं वाई एमबीए पे। ये बेसिक बेसिक चीज तुम्हें नॉर्मल बतानी है मेरे को, तुम्हें एमबीए क्यों करनी है। बेसिक बेसिक जो तुमने लिख रखी है या तुम्हें याद है, जो तुम सामने हम्म बोलने वाले हो, सबको पैसे के लिए करनी है। तुम्हें करनी क्यों है, जो तुमने लिख रखा है, तुम्हारा बहाना क्या है एमबीए करने का, हम्म वो तुम्हें मेरे को सिंपलर वर्ड्स में बताना है अभी। तुम क्या हम्म बोलने वाले हो। पंकज भाई आप स्टार्ट करो, क्योंकि अपने को yes आधे घंटे में wrap up करना हम्म I want to pursue MBA because I want to grow and hone my skill in a B school. And then I want to join the League of Corporates. And I see myself as a top class executive in top MNC, which I need some skills like people management, resource management skills, events networking, learn from the best with best. है। ओके ओके, This is गुड गुड, that is why I want गुड। to pursue MBA. थैंक यू भाई। रोहित भाई एक बार आप बताना। स्पीड आ रही है ना नेटवर्क की? क्या? आवाज आ रही है ना मेरे? क्या तो नेटवर्क इशू हो रहा है सो हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, बोलो बोलो, दी आवाज आ रही है। सो एक सेकेंड। I want to do MBA because one of my cousin who is working in Google as a brand ambassador, and I aspire from the life what he is living, and the motivated by his success, I want to do MBA, and I have also a lot of interest in business related activities, AI industries, go global economics, and I want to learn about the and sorry, I think MBA is the ideal platform where I can learn about the business world, and I want to learn about the resource management and people management. So And Rohit, you talked about economics. Do you know difference between GDP and GNP? yes, What is difference between GDP and GNP? GDP means gross domestic product, and GNP means gross net product. So No, we yes, I am telling, I am explaining you. When we deduct domestic, भूल गया, पढ़ा हुआ था। बिल्कुल। साक्षी, अब तुम बोलो थोड़ा। अभी मैं तुम्हें तीनों को बता देता हूँ एक साथ ही, ठीक है, कि क्या करना है। साक्षी, तुम बताओ अपना थोड़ा वाई एमबीए। Okay. Since I am coming fresh out of the college,
I don't have a set of preconceived notation as to how things work. I am completely ready to learn new things and adapt to new methods and ways. I'm just starting out to my career. Uh, कोई बात नहीं, like, चलो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। हम्म, अ, पंकज भाई, आपके एमबीए में ऐसे लग रहा था कि आपको कुछ पाना है इसलिए एमबीए करनी है, अच्छा। ठीक है। हम्म। मतलब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसलिए मैं नहीं, मैंने पहले बताया आपको बताना है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं हम्म। जिसके कारण मुझे लगा कि मेरा जो स्किल्स है वो एमबीए से मैच खाता है, और अगर मैं हम्म। एमबीए करूंगा तो वो स्किल्स और उभर के सामने आएंगे। और माय हम्म। पॉइंट कि मान लो मैं अच्छा सेल्स पिच, मैं सेल्समैन अच्छा हूँ, मैं कोई चीज पिच अच्छी कर सकता हूँ, बट हम्म। आफ्टर डूइंग एन एमबीए आई विल गेट मोर एक्सप्लोरेशन ऑफ दैट फील्ड, सेल्स फील्ड और मार्केटिंग फील्ड, कि अगर मैं बड़ी एमएनसी में काम हम्म। करूंगा तो मैं अपने स्किल सेट वहां शोकेस करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे को वहां हम्म। शोकेस करनी है इसलिए मेरे को एमबीए करनी है, नहीं, मेरे हम्म। पास कुछ है, मैं एमबीए करके उनको एनहेंस करूंगा, फिर आगे शोकेस करूंगा। आप रिवर्स चल रहे हो, आप बता रहे अच्छा। हो कि मेरे को वहां काम करना है इसलिए एमबीए करनी है, नहीं, मेरे में स्किल्स हैं, एमबीए से हम्म। मेरे इनहेंस होंगे, फिर मैं आगे हम्म। कंट्रीब्यूट करूंगा। हम्म। जैसे रोहित, आप तुमने ठीक बोला, बट तुम भी उल्टे चले गए कि मेरा एक गूगल में भाई उसका एमबीए, देखो सबको पता पैसा कमाने आ रहे हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ के अच्छी नौकरी करनी है, बट नहीं, उनको सच नहीं जानना। उनको जानना है कि आप में कुछ ऐसे स्किल्स थे जो तुमने बाद में बताया कि मेरे में कुछ स्किल्स थे इसलिए मेरे को, नहीं, तुम में कुछ स्किल्स थे, वो गूगल वाला भाई आपसे मिला, ही टोल्ड हम्म। यू, सजेस्टेड यू, कंसल्टेड यू अबाउट द थिंग दैट यू आर गुड इन दैट, and you should pursue MBA from IIMs and some of the good B schools in our country, so हम्म। that you will get more exposure of these fields, whatever economics जैसे तूने बोला, ठीक है, हम्म। ये इन चीज का एक्सपोजर मिलेगा, एंड देन तू आगे अपना लाइफ और अच्छा स्टेब्लिश कर सकता है। आपका हम्म। सोल पर्पस लाइफ स्टेब्लिश करना नहीं होना चाहिए उसके सामने, अच्छा। आपका मेन पर्पस लर्निंग होना चाहिए, कि मेरे में कुछ हम्म। स्किल्स हैं और उनको और अच्छा करने के लिए मुझे लर्निंग चाहिए, जो मेरे को आईएम में ही मिलेगी या अच्छे कॉलेज में मिलेगी। अच्छा क्यों मिलेगी वहां, तो लिखना हम्म। कि सर आईएम इंडिया का फिफ्थ और फोर्थ टफेस्ट एग्जाम है, और यहाँ हम्म। देश की क्रीम पढ़ने आती है, और क्रीम पढ़ाती है टीचर को, टीचर इंटरव्यू लेते हैं आपके, बोला हम्म। यहाँ के बहुत अच्छे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और उनसे पढ़ के मेरे को जो नॉलेज मिलेगी, दैट विल somehow enhance my knowledge in that domains, और इफ आई गेट अ चांस टू स्टडी अंडर देम, इट इज माई हम्म। लक। समझा? तो तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसे अच्छे कॉलेजों में जाना है जहाँ अच्छे टीचर अच्छे लोग पढ़ते हैं, उससे हम्म। तुम्हारे स्किल्स बढ़ेंगे, देन तुम्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, तुम अच्छा करोगे। ये नहीं कि तुम्हें अच्छा बनना है, वो जगह जाना है, फिर ऐसे तो एमबीए करनी जरूरी नहीं। एमबीए तुम हम्म। बोलोगे आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, नहीं, यूट्यूब में आप नहीं होगे सर, आप जो अच्छे टीचर हो अच्छे लोग हैं, वो नेटवर्क नहीं बनेगा। एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, ठीक है। एमबीए पढ़ के मैं कॉलेज के देश के 400 अच्छे बच्चों में पढ़ रहा हूँ, तो अच्छे 400 लोग जानेंगे, हम्म। उनसे मैं नॉलेज शेयरिंग करूंगा। कहाँ एक बीबीए का बच्चा होगा, कहाँ एक आईआईटी का बच्चा होगा, कहाँ एक एम्स का बच्चा होगा, कहाँ एक डीयू का बच्चा होगा, ठीक है। हम्म। ये जब चारों अलग अलग, कहाँ एक जेएनयू का बच्चा होगा, ये चारों जब अलग अलग फील्ड से आते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करते हैं, थॉट शेयर करते हैं, देन उसमें से कंक्लूजन निकलता है, जो एक बहुत अच्छी चीज होती है, जो मैं लूंगा तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको हम्म। ये बताना, जैसे साक्षी ने भी नॉर्मल बोल दिया कि मैं फ्रेश निकली हूँ तो मुझे एमबीए कर नहीं, मैं कॉलेज में कुछ कर रही थी और उसी मीनवाइल मेरे को पता चला कि आई एम गुड इन दैट डोमेन। आपको एमबीए के डोमेन पता है क्या क्या होते हैं? हम्म, चलो, कंसल्टिंग होता है, ऑपरेशंस होता है, स्ट्रेटजी होता है, फाइनेंस, सेल्स मार्केट, फाइनेंस होता है, पांच ऑपरेशंस, सात यस। होते हैं वो लोग। हाँ, वो लोग और भी खोल रहे हैं धीरे धीरे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ गया अब तो भाई, लोग आ जा रहे हैं, ठीक है ना। इनमें से कोई एक चीज अपनी पकड़ो जो तुम्हें है, तुम्हें सेल्स अच्छी है, तुम्हारी फाइनेंस अच्छी है, तुम्हारी मार्केटिंग का तरीका अच्छा है, तुम ऑपरेशंस में अच्छे हो, तुम किस में अच्छे हो, तुम आईटी के बंदे हो नहीं तो प्रोडमैन तो बोलूंगा नहीं हो, हम्म। तो तुम किस चीज में अच्छे हो वो निकालो अपना भाई, ये ढूंढना पड़ेगा तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। उस चीज को जो तुम्हारे में अच्छी है उसको अलाइन करो अपने पास्ट से, कुछ स्टोरी क्रिएट करो, उसको फिर अभी एक डालो कि मैंने कैसे उसको अभी समझा कि मैं एमबीए क्यों करना चाहता हूँ उसके लिए, वो मैं एमबीए में आके बढ़ाऊंगा, पढ़ूंगा,
समझ रहे हो? ये नहीं बोल सकते कि मैं फ्रेश निकला हूं तो मेरे को कुछ तो करना है तो मैं एमबीए नहीं। उनको कुछ भी करने वाले नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो करीम है, जिनको अपना पहले से पता है कि उनकी क्या पावर है। ठीक है? हम्म उस पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। पता है उनको भी, तुम यहाँ से निकलते पीएचडी भी कर सकते हो, हम्म पॉलिटिशियंस भी बन सकते हो, कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, कॉर्पोरेट छोड़ दोगे, एनजीओ भी खोलोगे। बट हम्म उनको एटलीस्ट वो चाहिए जिसको लाइफ में क्लैरिटी तो है कि अगले 5 साल उसको क्या करना है। आप ये बोल रहे हो कि मुझे बस फ्रेश हो तो कर लेती हूँ, तो उनको लगेगा कि यार ये 2 साल बाद एमबीए के बाद भी कुछ ना कुछ करेगी, एमबीए के हम्म स्टेट्स खराब करेगी कि आईएम से इंसान निकल रहा है तो कुछ अच्छा बन के निकले। उनका मानना ही होता है। तो वो रैंडम इंसान को नहीं लेना चाहते। ठीक है? तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा टैलेंट देखो इन एमबीए के कुछ डोमेन से, जो मिलता जुलता हो तुम्हारे में। तुम अच्छा सेल्स पर्सन हो, तुम अच्छे मार्केटिंग पर्सन हो, तुम अच्छे फाइनेंस पर्सन हो, तुम अच्छे कंसल्टेंट हो, हम्म तुम अच्छे स्ट्रेटेजी बना लेते हो, तुम देखो तुम्हारे में इनमें से क्या स्किल्स हैं। देन उसको अपने पास से रिलेट करो, that what thing you have done in your past that related with those skills, and then why you realize that you should pursue MBA, and then आप MBA प्रिपेयर कर रहे हो और आप बढ़ा के ये चीज करो। समझे? ओके एक स्टोरी बनानी है, अगर आपको स्टोरी बनानी आ गई तो आप आधे मैनेजर बन गए, क्योंकि सेल्स कंसल्टिंग में ये काम करना पड़ता है। तो एक स्टोरी बनाओ कि आपने क्या किया है, फिर उस पे हम्म बेस करो, फिर उस पे कंटेंट बनाते हैं अपन, और वो कंटेंट आपको चैट जीपीटी देगा। मैं आपको सिर्फ पॉलिश कर सकता हूँ कि आपने हम्म जो बोला है उसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्वेश्चन इंसान पूछेगा, हम्म इंटरव्यू वाला। तो मैं उस पर आपको टारगेट करके वो बता सकता हूँ कि वो इन चीजों पे क्वेश्चन पूछ सकता है। बट आप अपना बेसिक चीज जो भाई एमबीए वो प्रिपेयर ऐसे करो कि तुम्हारा जो एमबीए करने का रीजन है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे स्किल सेट से मैच करे, ना कि तुम्हारी हम्म डिजायरेबिलिटी कि तुम्हें एमबीए में क्या करना है, एमबीए क्यों नहीं। एमबीए क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारे में है, तुम्हारे में कुछ स्किल सेट है कि तुम्हें हम्म अगर एमबीए आईएम कॉलेज में आओगे तो तुम बच्चों को सिखाओगे। तुम सिर्फ सीखने कुछ पाने नहीं आ रहे, तुम यहाँ कुछ देने भी आ रहे हो। उस देने के लिए तुम्हारे में एक स्किल सेट होना चाहिए। समझ रहे हो? ये वीआर सी क्वांट डीएलआर तो सब कर रहे हैं भाई। तुम में ऐसा हम्म क्या है कि तुम्हें ले ले, तो एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है? ओके की थी कि मैं मर्चेंडाइज सेल्स करता था, ऑनलाइन ऑफलाइन इंफॉर्मेशन में था। देन होकिया हम्म को फाउंडर कोऑर्डिनेटर था, मेरी सेल्स में जॉब भी थी, मैं एनजीओ में हम्म था। यहाँ सब मैंने मैंने मैनेजमेंट 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 दिखा रखा है कि इवन हम्म आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम एन आईआईटी, इवन आफ्टर हैविंग अ गुड जॉब, आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब टू जस्ट get into IIM so that I will study under the cream of the nation and study under the cream of the nation of professors। ठीक है? हम्म ये चीज बताई। और मैं चाहता ही था एमबीए करना ही, तो मैंने जॉब इसलिए करी थी कि मेरे को कॉर्पोरेट का एक हल्का आइडिया भी लग जाए कि हाउ कॉर्पोरेट लाइफ वर्क्स। उसलिए मैंने कॉर्पोरेट का आइडिया लिया, जॉब छोड़ी, एमबीए करी। अब सीख के मैं दोबारा अपने लर्निंग इंप्लीमेंट करूंगा। ये चीज बतानी है। ठीक है? हम्म तो ये था अपना। कुछ और डाउट हो तो पूछ लो भाई। वाई एमबीए तुम मतलब अभी मैं 10 दिन तो तुम्हारी क्लास में नहीं लूंगा, अगर सर मेरे को हम्म दोबारा करेंगे। बट ये है कि अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो। मतलब मैं पूछ रहा हूँ जैसे अब जीडी पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ साथ में इंटर्नशिप या जॉब वगैरह देखे हैं या नहीं? नहीं, अभी वो काम नहीं आएगी। अच्छा ऐसे एनजीओ वगैरह देख सकते हैं ना, 1 वीक या 2 वीक की इंटर्नशिप हो, वो क्या इंटरव्यू में मेंशन कर सकते हैं। प्रोफाइल बिल्ड हो जाए। देख ऐसा है ना कि मैं ये मानूंगा कि अगर आप अभी इंटर्न कर रहे हो तो आपको ये दिखा सकते हैं कि आप कांस्टेंट लर्निंग या कांस्टेंट कुछ करना चाहते हो कि हम्म करंटली आई एम डूइंग दिस थिंग एटसेट्रा। बट अभी वो हम्म सीवी में ना तो जुड़ेगा ना पॉइंट मिलेगा उसका, वो लिखा होता है वर्क कहाँ तक काउंट हो गया। हाँ, तुम्हारी हाँ। लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो कर सकते हो कुछ ना कुछ की। अभी मैं ये कर रहा हूँ, हम्म मतलब है कि 4 दिन काम करो, 20 दिन का सर्टिफिकेट बना लो। अच्छा उसे ये ना लगे तुम भाई वेले हो, वेला वेला नहीं। तुमने हम्म 4 दिन काम, 4 दिन में वर्क फंक्शन समझ लिया पूरी हम्म कंपनी का, देन सर्टिफिकेट बना लिया 20 दिन का। हम्म और लिखो कि मैं पिछले 20 दिन से काम कर रहा हूँ। 20 दिन से मतलब हम्म तुम अगर 14 दिन काम करोगे तो 3 महीने का सर्टिफिकेट बनाओ। क्योंकि अगर वो हम्म तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा तुम 14 दिन की नॉलेज से आंसर दे सकते हो। बट उसे हम्म लगना चाहिए कि तुम काम 3 महीने से कर रहे हो। उसे ये नहीं कि अभी इंटरव्यू है तो 14 दिन से काम कर रहे, नहीं। यू आर ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग। तुम्हें फ्री टाइम अच्छा नहीं लगता, एमबीए में फ्री टाइम है ही नहीं भाई। आप कई बार 1 घंटे सोओगे पूरे दिन में, हम्म
कई बार 2 घंटे 7 घंटे से ज्यादा सो ही नहीं पाओगे पूरे दिन में कभी भी, इवन ऑन वीकडेज। वो डिपेंड करता है, जैसे आई एम उदयपुर में 100% अटेंडेंस है, एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। एक दिन में अच्छा, नहीं ले सकते? भाई बीमार है तो भी नहीं ले सकते हैं। फिर पढ़ाई वढ़ाई कैसे होती है, मतलब ऐसे क्लास और कुछ, क्लास के अलावा भी क्या क्या होता है कॉलेज में? बहुत कुछ होता है, हम्म, हजारों पार्टियां होती हैं। हम्म, बट वो है कि अगर आपका पार्टी है तो आपको 2 घंटे पार्टी करके छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एमबीए में पढ़ाई सब कुछ है, नेटवर्किंग भी सब कुछ है, केस कंपटीशन है। मतलब आपको अकेड्स पूरा ध्यान रखना पड़ता है, हार्ड नहीं है बट हम्म। हेक्टिक है। मतलब मेरे को ईंट उठानी है, पर हम्म। एक दिन में 1000 ईंट उठानी है, तो ईंट उठानी हार्ड नहीं है, 1000 ईंटें उठानी है वो हार्ड है। अच्छा, सही है। और पूरे दिन चलता रहता है ये काम आपका, तो वो आपको फ्री नहीं देखना चाहते। ठीक है। हम्म। तो अभी टेल मी समथिंग अबाउट वाला किया, तो ये लोगों को हम्म। चैट चैट से करना है आज रात को प्रिपेयर, ठीक है ना। हम्म। एमबीए आपको अपने पास से रिलेट करके स्टोरी बनानी है, जो हम्म। करना ही है। देखो भाई, अगर नहीं हम्म। करोगे अभी वाले से चल रहे हो ना भाई, हम्म। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ तीनों को नंबर सबसे कम मिलेंगे, क्योंकि पंकज भाई बता रहे हैं कि उसको लाइफ में अच्छा करना है इसलिए करना है। हम्म। रोहित भाई में स्किल्स तो हैं, पर वो स्किल्स देख के नहीं, वो एक इंसान देख के इंस्पायर हुए हैं जो उनका हम्म। कजन है। और साक्षी हम्म, बोलती है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रही तो कुछ कर ही लेती हूँ। नहीं, हम्म। एक स्टोरी बनाओ पास्ट में जो तुम्हारे एमबीए के स्किल सेट से मिलती जुलती सी है, तो तुमने सोचा कि एमबीए करेंगे क्योंकि हमें हम्म। अपनी नॉलेज इनहेंस करनी है, इंक्रीज करनी है, एक्सप्लोर करना है और लाइफ, ठीक है ना। हम्म। ऐसे बनाओ, बन जाएगा, अच्छा निकल जाएगा, चिल करो। अपना ठीक ये है। आई एम उदयपुर का एक्सपीरियंस तो बताओ, मतलब क्या क्या पूछा था, कैसा हुआ था? ये अभी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, अपन कभी दोबारा बैठते नहीं नहीं, ठीक है भाई, इंटरव्यू का बिल्कुल। बोल रहा हूँ मैं तो। इंटरव्यू में क्या क्या पूछे थे ऐसा? हाँ, इंटरव्यू में जैसे कैब का इंटरव्यू था तो मुझसे वही टेल मी समथिंग पूछा। हाँ। हम्म। मैंने कहा कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने सेल्स में एक्सपीरियंस बताया। देन हम्म। एक दो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे और एक दो एचआर क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया कि मान लो आप सिगरेट कंपनी के सेल्स हम्म। मैनेजर हो, देन हम्म। कैसे सेल करोगे। तो मैं बताया कैसे सेल करूंगा, मेरी स्ट्रेटेजी बताई सेल्स करने की। तो उसने बोला कि सेल, अब सिगरेट्स तो हानिकारक है सेहत के लिए, देन हम्म। हाउ व्हाई यू आर सेलिंग दैट। तो मैंने बोला कि सर वी हैव a paper on that cigarette packet that tells other that it is harmful for them, हम्म। but if still they are buying, that's on them, because I am here for business. हम्म। Ethics says that I also put some stickers that it is harmful for you. I am doing ethical things, that I am selling and telling also that I am selling something that may harm you. And हम्म। for other ethical reason, I can we also sell herbal cigarettes. So it's on them. So ऐसा ऐसे बस इतना पूछा, कितने टाइम फिर तक चला था इंटरव्यू, मतलब 15-20 मिनट या आधा अरे घंटा? कैब का तो 15 मिनट, 12-15 मिनट। अच्छा, तो एज डिपेंड करता है कॉलेज का, एनएमआईएम्स का ज्यादा चलता है, कुछ कॉलेज का अहमदाबाद लखनऊ बेंगलुरु का ज्यादा चलता है, कुछ लोग कम चलता है। वो है ना कि अब जैसे कैब का होता है तो एक साथ होता है, तो कैब में हम्म। 9 कॉलेजेस हैं। तो 9 कॉलेज 10 में घंटे इतने जाते बच्चे हैं। ज्यादा नहीं है, अहमदाबाद बेंगलुरु में बंदे गिनती चुनती के जानते हैं भाई, उनके थोड़ा सा लेके छोड़ देंगे। कैब में हम्म। ज्यादा लेना होता है, इसलिए थोड़ा कम टाइम लेते हैं। या फिर ये ग्रेजुएशन के बारे में कुछ पूछा था क्या? भाई मैं वही बोलूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। अगर उसके मन में है तो आप पैदा कब हुए कहाँ हुए वो पूछता रहेगा, उसके हम्म। मन में है तो भाई रॉकेट साइंस पूछ लेगा। अच्छा। आप गैस नहीं कर सकते, फिर वो इसलिए पूरा मार्क्स से प्रिपरेशन। बताता है, मार्क्स से बताता है क्या इंटरव्यू कितने मार्क्स वगैरह मिले, ऐसा कुछ? वो लास्ट में आते हैं, जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाता है बता देते हैं कि आप आरटीए डालो, तो बता देते हैं कि आप कितने मार्क्स आए। अपने कितने आए थे पता है क्या? नहीं यार, मैंने वो ऐसे चेक नहीं किया, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे आना भी नहीं था ऐसा तो यहाँ बट अब वो किस मजबूरी का ना, किस किस में नहीं हुआ था? हुआ। उदयपुर सारे में हो गया मेरा होगा सारे, मतलब कैब कैब वाले सारे में हुआ, रोहतक में भी हुआ। हम्म। मेरा बस आईटी दिल्ली एक और अच्छा था, उसके अलावा हम्म। मैंने इनके अलावा आईटी दिल्ली दिया था, वो मेरा 1 नंबर से रह गया। मेरी अच्छा। वेटिंग, थोड़ी सी वेटिंग में था उनके, पर वो हो जाता तो बेस्ट था मेरा, बट नहीं हम्म। हुआ। मेरे को बीआरसी ने मारा उसमें मेरे हाँ। 2-3 नंबर, दो क्या एक एक पर ही होता, तो मेरा क्या बीआरसी का सेक्शन तो टॉप आईएम्स का भी क्लियर हो जाता। तो फिर परसेंटाइल मुझे कितनी वहां थी से लास्ट? है। लास्ट टाइम परसेंटाइल कितनी थी?
मेरी 92 थी यार, नहीं 92। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ यार, मेरे को डिनर करना है और फिर पढ़ना है थोड़ा, मेरे एक पेपर है हफ्ते बाद। ठीक है भाई। तो तुम्हें कोई गुड नाइट। दिक्कत हो तो बता देना कि ये हाँ प्रिपेयर कर जी, लेना, ठीक ठीक बहुत bro। है? थैंक यू थैंक भाई, यू भाई। Thank you. गुड नाइट। टाइम अरे दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया हमारे लिए। हाँ भाई। चलो, ठीक। चलो बाय बाय। 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 Bye.